Hello everybody, here is your AVS subject teacher Dharmendra sir. Dear students, welcome back once again my YouTube channel Achievers Academy. Students, previously I have sent 3 video about chapter number 17, part 1st, 2nd and 3rd. So I hoped you must be watch the previous video and get more understanding level also. If you are having any problems, then you can clear the doubts by phonic conversation. So here just I think I must be go ahead about the next chapters. So here today I will start chapter number 18, No Place for Us, part 1st. The chapter name, the title name is No Place for Us. The meaning of this title name, No Place for Us, हमारे लिए कोई जगह नहीं, हमारे लिए कोई जगह नहीं, No Place for Us. Let's see what is the summary of this chapter, then you can get more understanding what is the saying of these chapters and what is the conclusion especially of this chapter. So let's start. Firstly, I have already write here, Jatria was born in Khedi village. Jatra was who born in Khedi village. खेड़ी एक विलेज का नाम है, उस विलेज में वो पैदा. ओके, द पीपल ऑफ खेड़ी विलेज डिड फिशिंग एंड फार्मिंग टू अर्न मनी. पीपल ऑफ खेड़ी विलेज के गांव के लोग डिड फिशिंग एंड फार्मिंग टू अर्न मनी. पैसे कमाने के लिए उनका कौन सा रोजगार था? फिशिंग, मछलियों को पकड़ना, एंड फार्मिंग, खेती का काम करते थे. टू अर्न द मनी. So the people of Khedi village did fishing and farming to earn money. It's clear? Let's see next. A big dam was to be built on the river of Khedi village, due to which many people had to leave their village. A big dam, एक बड़ा बांध जो है, टू बी बिल्ट ऑन द रिवर ऑफ खेड़ी विलेज. खेड़ी विलेज गांव के नज़दीक जो रिवर, खेड़ी विलेज का रिवर जो था, जो उसके सराउंडिंग से रिवर निकली हुई थी, वहाँ पे एक बिग डैम बिल्ट हो रहा था. बहुत बड़ा एक बांध बनाया जा रहा था. सो ड्यू टू विच मेनी पीपल हैड टू लीव देयर विलेज. ये लोग अपने गांव को छोड़ दिए थे. Because dam is the dangerous for that particular village. So he thought, the persons thought, we can shift the another village, we can shift our family to another village because this is the dangerous for us. So because he shifted, the person shifted his family members and to another village. So let's see here, they shifted to a new village named Sinduri village. वे अपने आप को they shifted to a new village, अपने आप को नए गांव में शिफ्ट कर चुके थे. उस गांव का नाम था सिंदूरी विलेज. पहले वो खेड़ी विलेज में रहते थे और अब वो सिंदूरी विलेज में जा चुके थे. एंड लास्टली दे वेर फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज. वे लोग बहुत सारी डिफ़िकल्टीज, परेशानियों को फेस कर रहे थे इन सिंदूरी विलेज. सिंदूरी विलेज में भी बहुत सारी परेशानियों को फेस कर रहे थे. उनके सामने काफ़ी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स आ रही थी. दे वेर फेसिंग मैनी डिफ़िकल्टीज इन सिंदूरी विलेज. सो हियर स्टूडेंट्स, दिस इज द समरी. सो शॉर्ट समरी यू कैन से. If you read the chapter, then you can know about
what was the real problems the Sinduri village persons was facing in that particular time when dam built there, and what was the main reason and why they shifted to another village, and what was the main problems in Sinduri village the persons were facing. What was the main problems? There were one problem in Khedi village, dam were built, वहाँ पे डैम बिल्ट हो रहा था, ये प्रॉब्लम्स थी। इसके लिए उन्होंने खेड़ी विलेज में जाने का निश्चय किया। वहाँ पे जब वो शिफ्ट कर रहे थे अपने आप को, तो वहाँ पे क्या डिफ़िकल्टीज हुई थी उन्हें। तो यहाँ पे इस सारी चीज़ों जो भी इस घटना के अंतर्गत जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उसलिए हमें जानना ज़रूरी होगा कि व्हाट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम दे फेस, एंड ऑल्सो टाइटल नेम इज ऑल्सो हियर, नो प्लेस फॉर अस। द पर्सन इज सेइंग नो प्लेस फॉर अस, हम लोगों के लिए कोई जगह नहीं, नो प्लेस फॉर अस। तो लेट्स रीड द चैप्टर्स एंड देन वी विल नो अबाउट व्हाट वाज द प्रॉब्लम्स and what kinds of problem they face the Khedi village. So students, I would like to just define Jatraya was born in Khedi village. Jatraya जो है खेड़ी विलेज में पैदा हुआ था, in Hindi meaning. Second one, the people of Khedi village did fishing and farming to earn money. People of Khedi village गांव के लोग वहाँ पे फार्मिंग, खेती का काम करते थे, एंड फिशिंग और मछलियों को पकड़ने का काम करते थे, फॉर अर्निंग द मनी, पैसा कमाने के लिए उनके पास ये दो रिसोर्सेस थे, दो सोर्सेस थे, यू कैन से, फार्मिंग एंड फिशिंग। Let's see. Third, a big dam was to be built on the river of Khedi village. एक बड़ा डैम बन रहा था, एक बड़ा बांध बन रहा था। A big dam was to be built on the river of Khedi village. खेड़ी विलेज गांव के नज़दीक जो रिवर थी, जो नदी था, वहाँ पे a big dam was to be built on the river of Khedi village. वहाँ पे एक बड़ा डैम बन रहा था, टू विच मैनी पीपल हैड टू लीव देयर विलेज, जिसके कारण बहुत सारे लोग उस गांव को छोड़ रहे थे। ओके, नेक्स्ट इज हियर, दे शिफ्टेड टू अ न्यू विलेज। वे शिफ्ट हो रहे थे, वो अपने आप को शिफ्ट कर रहे थे दूसरे विलेज में। द विलेज नेम वाज द सिंदूरी विलेज, उस गांव का नाम क्या था? सिंदूरी विलेज। एंड फिफ्थ इज हियर, दे वेर फेसिंग मेनी डिफिकल्टीज इन सिंदूरी विलेज। वे बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी दिक्कतों का सामना कर रहे थे। कहाँ पे? सिंदूरी विलेज में भी, सिंदूरी गांव में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस चैप्टर, द चैप्टर टाइटल नेम इज नो प्लेस फॉर अस। The person is saying that we have no any place to leave my family and ourselves because these kinds of problems we are facing. The person's Jatraya was born in Khedi village. Jatraya जो है खेड़ी विलेज में पैदा हुआ था, और the people of खेड़ी विलेज did fishing and farming. वहाँ के लोग जो है फिशिंग और फार्मिंग से पैसे अर्न करते थे। बट ए बिग डैम वॉज टू बी बिल्ट ऑन द रिवर ऑफ खेड़ी विलेज। खेड़ी विलेज गांव में, गांव के रिवर, खेड़ी विलेज गांव की नदी पर एक बड़ा डैम बन रहा था। ड्यू टू विच, इस रीजन से मैनी पीपल हैड टू लीव देयर विलेज, इसलिए वो बहुत सारे लोग अपने गांव को छोड़ दिए। बिकॉज विलेज वॉज इन अ डेंजर जोन, गांव जो है डेंजरस जोन में था, खतरनाक जोन में था। बिकॉज व्हेन द डैम वेयर देयर,
एक बड़ा बांध वहाँ पे बना हुआ था। सो लोगों ने ये डिसाइड किया कि इस गांव को हमें छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट वन, दे शिफ्टेड टू ए न्यू विलेज, वो दूसरे गांव में शिफ्ट हो रहे थे। दे शिफ्टेड, वे अपने आप को शिफ्ट कर लिए थे अ न्यू विलेज, नए गांव में, नेम्ड सिंदूरी विलेज, उस गांव का नाम क्या था? सिंदूरी विलेज। दे वेर फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज इन सिंदूरी विलेज, वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे इन सिंदूरी विलेज ऑल्सो, सिंदूरी गांव में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वे फेस कर रहे थे। सो आई होप यू कैन गेट द व्हाट इज द समरी of these chapters. After reading you can clarify what was the problems they were facing in Sinduri village and what was the problems they facing in Khedi village. खेड़ी विलेज में उन्होंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किया जिसकी वजह से उन्होंने सिंदूरी विलेज में शिफ्ट होने के लिए डिसाइड किया, और सिंदूरी विलेज में भी वो लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, इन सब के बारे में हम लोग when we read the chapter properly then we will know about. And also I will discuss all the topics of this chapter, exercise, question answer. So let's start the chapters. I will start the chapters especially to define some difficult terminology and some difficult words. So dear students, let's see some difficult words in this chapter. Let's see here difficult words, students. Let's see the first, torn. What is the meaning of torn? Ragged, हिंदी मीनिंग फटा हुआ। ओके, रैग्ड, टॉर्न, रैग्ड, सॉर्टेड, क्लासिफाइड, ओके, क्लासिफाइड करना, और यू कैन से सॉर्टेड। मर्मर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्मर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्मर? ग्रम्बल। ओके, द हिंदी मीनिंग ऑफ बड़बड़ाना। ओके, मर्मर, ग्रम्बल, बड़बड़ाना। चिर्पिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिर्पिंग? ग्राइड। ओके, चिर्पिंग, ग्राइड, ची ची करना। पक्षियों की चहचहाट को क्या कहते हैं? चिर्पिंग और ग्राइड, यू कैन सी। ओके, पक्षियों के चहचहाने को क्या कहते हैं? चिर्पिंग और ग्राइड। फोरफादर, एंसेस्टर, एंसेस्टर। ओके, लेट्स रिवाइज दिस। टॉर्न, TORN, टॉर्न, रैग्ड, RAGGED, रैग्ड, फटा हुआ। सॉर्टेड, क्लासिफाइड करना, अलग अलग करना। बहुत सारी चीज़ें मिक्सअप हैं, उनको अलग अलग क्लासिफाई, वन टाइप्स के अलग अलग जो है क्लासिफाइड करना, सॉर्टिंग करना होता है। क्लासिफाइड करना, एक ही ग्रुप की चीज़ों को अलग साइड में करना, दूसरे ग्रुप की चीज़ों को अलग साइड में करना, ये क्या होता है? सॉर्टिंग करना है, और क्लासिफाइड, यू कैन से। मर्मर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्मर? ग्रम्बल, दैट मीन्स बड़बड़ाना। चिर्पिंग, ग्राइड, चिड़िया की चहचहाट की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? चिर्पिंग। ग्राइड करना, ची ची की आवाज़, चहचहाट की आवाज़ को हम क्या कहते हैं? चिर्पिंग। एंड हियर इज द फिफ्थ इज फोरफादर। फोरफादर, एंसेस्टर, पूर्वज।
पूर्वजों को हम क्या कहते हैं? एंसेस्टर। ओके, फोरफादर इज अनदर वर्ड इज एंसेस्टर। लेट्स सी हियर वांडर। व्हाट इज द मीन ऑफ वांडर? वॉकिंग, टहलना, घूमना, वांडर। फेंट, व्हाट इज द मीन ऑफ फेंट? व्हाट इज द मीन ऑफ फेंट? एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। ओके, व्हाट इज द मीन ऑफ फॉडर? व्हाट इज द मीन ऑफ फॉडर? स्ट्रॉ। व्हाट इज द मीन ऑफ फॉडर डियर स्टूडेंट्स? स्ट्रॉ। लैप, ड्रिंक, शैक, कॉटेज और हट। ओके, आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड व्हाट इज द मीन ऑफ वॉन्डर? वॉकिंग, टहलना, फेंट, एग्जॉस्टेड, बेहोश होना। ओके, यहाँ पे हम राइट डाउन कर देते हैं एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड। ओके, फॉडर, स्ट्रा, भूसा, जिसको हम कहते हैं भूसा। फॉडर को हम क्या कहते हैं? भूसा। जो जानवरों के खाने के चारे को हम क्या कहते हैं? भूसा। उसी को हम दूसरे वर्ड में क्या कहते हैं? फॉडर। एंड लैप, नाइन्थ इज लैप। लैप मीन्स ड्रिंक, ड्रिंक, पीना। एंड शैक, व्हाट इज द मीन ऑफ शैक? कॉटेज, कॉटेज आर हट। यू कैन से कॉटेज आर हट। झोपड़ी को हम क्या कहते हैं? कॉटेज। सो स्टूडेंट्स, I hope you must be understood what was the difficult words. What is the difficult words in this chapter? Let's revise the difficult word. Torn, sorted, murmur, chirping, forefather. Torn, the another word ragged, फटा हुआ. Sorted, another word classified. Murmur, grumble, बड़बड़ाना. And chirping, gride, ची ची की आवाज करना. पक्षियों के चहचहाट को हम क्या कहते हैं? चिरपिंग। फोरफादर, एंसेस्टर, पूर्वज, इसको इनको क्या? एंसेस्टर, द हिंदी मीनिंग ऑफ पूर्वज। ओके, वांडर, वॉकिंग, टहलना। फेंट, एग्जॉस्टेड, बेहोश। फॉडर, स्ट्रॉ, भूसा, जिसको हम कहते हैं लैप, ड्रिंक, पीना। शैक, कॉटेज और हट, झोपड़ी को हम क्या कहते हैं? शैक। सो आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टूड डियर स्टूडेंट्स. सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन ऑन योर फेयर कॉपी all the summary of this chapter, whatever I hear the given, and also learn the difficult words and write down on your fair copy these difficult words. So dear student, in the next part I will just clarify all the exercise, question, answer, and another aspect I will talk in part 2 video. So till that, all of you watch this video properly and just write down the work whatever I just given. All of you write down firstly summary and also write down difficult words and learn these difficult words. So thank you students, thank you so much. Watch my full video, and as soon as possible I must be meet in another video. Thank you so much students, have a great day.